Hello students, welcome back to English grammar class. In our today's grammar class, we are going to study chapter 10, finite and non-finite verbs. Verb means the action word. Okay, verb denotes what action is going on. So, we have studied the meaning of verb and the kinds of verb in the previous class, in the previous chapter. There are linking verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Okay, so today we are going to study finite and non-finite verbs. Verbs can be divided into two category. Verbs को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. ओके, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. दे प्ले इन द इवनिंग. ओके, हियर द सब्जेक्ट इज दे and play is the action word which is the verb. Okay, and Pooja plays in the evening. Pooja is the noun, the subject, and plays is the verb. In the first sentence the verb play has they. Okay, पहले sentence में जो they है, okay, it is plural, right? It is a plural pronoun and it is accompanied with the plural verb play. And the second sentence the verb is plays. ठीक है, it is having a singular noun that is Pooja, a name of girl. Okay, so in the first sentence the verb play has they for its subject and it agrees with it. Okay, they के साथ जो verb है play वो agree कर रहा है. In the second sentence, since the subject is Pooja, subject क्या है? Pooja, और verb है plays, is used to agree with the subject. Okay, it is also agreeing with the subject. यानी singular subject के साथ singular verb और plural subject के साथ plural verb. Okay, in both the sentence the verb is limited by person and number of सब्जेक्ट. इन दोनों ही सेंटेंस में जो वर्ब है, ओके, इट इज़ चेंजिंग इट्स फॉर्म एज पर द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी चेंज होके सिंगुलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और अगर वर्ब प्लूरल है, जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो इन बोथ द सेंटेंस द वर्ब इज लिमिटेड. वर्ब क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है कि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब यूज़ करना होता है एंड इट इज़ लिमिटेड. सो डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब चेंजेस देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. अगर बहुत सारे है यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके, इफ plural pronoun or noun is used, at that time we will change the verb and make it plural. Okay, so verbs that change their forms according to the number and the person, number of persons and the subject is called finite verb. यानी finite verb है वो subject number of persons यानी either they यानी many person. Okay, they is used for many persons, so along with they we used the verb play. Okay, and if the subject is singular, like in the second sentence it is Pooja, okay, so we used the verb plays. So we changed the form of verb. हमने verb में कुछ changes किया. तो finite verbs ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसके हिसाब से चेंज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टडी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस. आई लाइक टू प्ले इन द इवनिंग. राजेश लाइक्स टू प्ले इन द इवनिंग. हियर द वर्ब like and likes are finite verbs. Okay,
in the above sentence, leaving aside this verb, अगर हम इन वर्ब्स की बात नहीं करते हैं तो जो दूसरे वर्ब्स भी है सेंटेंस में वो कौन से है? टू प्ले, ठीक है. टू प्ले इज ऑल्सो शोइंग एक्शन. ओके, सो द वर्ब्स टू प्ले does not change their form. Okay, so they are not limited by subject. वो सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. सो दे आर इनफाइनाइट वर्ब्स. ओके, दे आर इन्फिनिटिव्स. ओके, दे आर नॉन फाइनाइट. ओके, सो आई लाइक टू प्ले, राजेश लाइक्स टू प्ले. यहाँ पर लाइक और लाइक्स वो फाइनाइट वर्ब्स है और टू प्ले वो इन्फिनेटिव है. ओके, सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल. सो द वर्ब्स दैट डू नॉट change their forms according to person or number of their subject are called non-finite verb. So the difference between finite and non-finite verb is कि finite verbs change according to the number of persons or subject and non-finite verbs do not change according to the number of their subjects or person. ठीक है, non-finite verbs are same, used same for any number of person. अभी finite verb है वो अपना form change करते हैं according to the subject, number of persons. Okay, and they change according to, so they are variable, and non-finite are not changing their form. Okay, so they are constant. Okay, there are three kind of non-finite verbs. अभी non-finite verb टाइप में 3 सब टाइप है: infinitive, participle और gerund. Okay, so non-finite verbs are having 3 types, that is infinitive, participle and gerund. So the first type, what is infinitive? Read the following sentence. He decided to play with him. He remembered to bring his lunch box. She wanted to eat this vanilla ice cream. यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब्स जो है वो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे. वर्ब्स है डिसाइडेड, रिमेंबर्ड, वांटेड. उसके अलावा ये तो वर्ब्स है ही, उसके अलावा भी सेंटेंस में वर्ब्स है जैसे कि टू प्ले, टू ब्रिंग और टू ईट. ठीक है, सो दे आर हैविंग मोर देन वन वर्ब्स. सो अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स भी होते हैं. ओके, सो अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन verb. Okay, so in the first, second and third sentence, the verb to play, to eat and to bring are infinitive type of non-finite verb. So in the above sentence, the verbs in bold, to play, to bring and to eat are infinitives. They are used after the main verbs. ओके, तो मेन वर्ब्स कौन से हैं? डिसाइडेड, रिमेंबर्ड, वांटेड, ये सारे मेन वर्ब्स हैं. और हमारे पास दूसरे वर्ब है टू प्ले, टू ब्रिंग और टू ईट. तो वो जो वर्ब्स है वो इन्फिनेटिव्स है. हमेशा इन्फिनेटिव के आगे प्रीपोजिशन टू लगता है. ओके, सो इन्फिनेटिव्स आर हैविंग द प्रीपोजिशन टू इन बिफोर द verb. Okay, so they are used after the main verb and they do not change their form whether the subject is singular, plural or whether it is in the first person, second person or third person. Okay, हमारा जो infinitive verb है, okay, the infinitives are coming after the main verb in the sentence.
सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव वर्ब्स आते हैं, ओके, और इन्फिनेटिव वर्ब्स है वो सेम रहते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर अगर हमने ही डिसाइडेड टू प्ले विथ हिम की जगह वी डिसाइडेड कर दिया, यानी ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, उसकी जगह अगर हमने प्लूरल प्रोनाउन रखा, अगर सब्जेक्ट हमने चेंज किया, देन ऑल्सो हियर द फॉर्म विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम। यहाँ पर टू प्ले का टू प्ले ही रहेगा। अगर हम कहते हैं वी डिसाइडेड टू प्ले तो भी सेम रहेगा। अगर हम कहते हैं कि ही डिसाइड्स, अगर हम उसकी टेंस भी चेंज करते हैं, ओके, देयर आर 3 टेंसेस, राइट, पास्ट टेंस मेन 3 है, सब टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हम वर्ब मेन वर्ब की टेंस चेंज करते हैं, फिर भी जो इन्फिनेटिव है वो सेम रहेंगे। सो इन्फिनेटिव है, अगर हम जो सब्जेक्ट है उसे चेंज करते हैं या मेन वर्ब को चेंज करते हैं, इन्फिनेटिव विल रिमेन द सेम। सो दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, इन द फर्स्ट एक्सरसाइज you have to fill in the blanks using the infinitives. ओके, आपको इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करके वर्ब्स लिखने हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉयज नीड डैश मार्चिंग फॉर द रिपब्लिक डे। हियर नीड इज हेल्पिंग वर्ब, ओके, and learn is the verb given in the bracket. Now to make infinitive, to will be preceded by the verb. Verb के आगे to लगेगा, इसीलिए to plus verb. Now the verb will not change, okay, so it will remain in the same form. To learn, okay. The second is the policeman always try. Here policeman, okay, men is given, so it is in a it is in a plural, right, it is not in the singular. The policeman, अगर man दिया हो तो singular, men दिया है means this is plural. So the policeman always try. अभी जो दूसरा भी verb दिया है try, okay, but try is the verb which is finite. अभी हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव ऐड करना है. सो द पोलिसमैन ऑलवेज ट्राई, अभी यहाँ पर आएगा टू रीच. ओके, so you have to solve this exercise in which you have to add the infinitive which is to plus verb. Now infinitives are sometimes used without to. भी कोई कोई इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जो टू के बिना भी हम यूज़ करते हैं, और ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं. सो द इन्फिनेटिव विच आर यूज्ड विदाउट टू आर बेयर इन्फिनेटिव. ओके, एग्जाम्पल, you should follow the orders properly. Okay, my daddy helped me complete the homework. बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, उसमें प्रिपोजिशन टू नहीं होता है आगे. ओके, सो ये जो टाइप के होते हैं वर्ब्स, ओके, बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं वो हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब के पीछे आते हैं, जैसे कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, मेक, फील, वॉच, नोटिस, बिड, नो. ओके, ऐसे सारे वर्ड्स जो कि ऑक्सिलरी है उसके पीछे आते हैं. ही कैन वर्क हार्ड. द पुलिस मैन लेट द थीफ गो. दे मेड देम रिजॉइस. शी सॉ हर प्ले. दे सॉ अस लीव. डिड यू सी हिम एंटर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कैन. ओके, आफ्टर द वर्ब कैन, कैन इज ऑल्सो अ वर्ब, दैट इज V1. ओके,
एंड द वर्ब इज वर्क. ओके, वर्क है वो जो है फर्स्ट टाइप है वर्ब्स का. सो ही कैन वर्क हार्ड. यहाँ पर हमने टू नहीं ऐड किया है क्योंकि आगे कैन दिया है इसीलिए. सो ये बेयर इन्फिनेटिव हुआ. नाउ द पुलिसमैन लेट द थीफ गो. सो हियर लेट इज ऑल्सो द वर्ब एंड गो इज ऑल्सो द वर्ब. ओके, सो हम गो के आगे वो टू नहीं लगा रहे हैं. ओके, द पुलिसमैन लेट द थीफ गो. हम ऐसा भी बोल सकते हैं पुलिसमैन अलाउड द थीफ टू गो. अगर हम ऐसे इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इन्फिनेटिव टू ऐड करना पड़ता है. पर अभी यहाँ पर जो वर्ड लेट दिया है LET, जिसके वजह से हम पीछे टू ऐड नहीं करते हैं. ओके, द फॉर्मेशन हैज चेंज्ड. दे मेड देम रिजॉइस. ओके, I hope you are understanding. Okay, now usage of infinitive. Where are the infinitives used? It is used to join the sentence. अभी infinitive जो होते हैं वो sentence को join करने के लिए useful होते हैं. अभी conjunction जो होते हैं वो भी sentence को join करने के लिए होते हैं. पर यहाँ पर इन्फिनेटिव जो होते हैं वो एज अ कनेक्टर यूज होते हैं कि जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. ओके, दे आर यूज्ड, दे एक्ट एज अ कनेक्टर एंड दे जॉइन टू सेंटेंस. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. ही वेंट टू स्टेडियम, ही वॉन्टेड टू सी द मैच. अभी हमें दो सेंटेंस दिए हैं जहाँ पर हमें बोला है कि one boy is going to stadium. He is in the stadium and why he has went to stadium to watch the match. Okay, हमें इसको एक सेंटेंस बनाना है. So we will add infinitive to add this sentence. He went to the stadium. He went to the stadium to see the match. Now he wanted to see the match. He wanted to हम कट आउट कर देंगे और यहाँ पर इन्फिनेटिव टू सी दिया है वो हम यूज़ करेंगे. ही वेंट टू स्टेडियम टू सी द मैच. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ कनेक्टर. इट इज़ हेल्पिंग टू जॉइन द सेंटेंस. नाउ दूसरा कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं? इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सो एंड दैट. हमें जो रीज़न देना होता है उसके लिए हम सो और दैट ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट? So in place of so and that we use infinitive. The example is I am so happy that I cannot tell. अभी यहाँ पर हमने जो सेंटेंस बनाया है I am too happy to tell. मैं बहुत खुश हूँ कुछ बोलने के लिए भी. Okay, so I am too happy to tell. To means extreme, ठीक है, बहुत. Okay, and कुछ बोलने के लिए मीन्स टू टेल. सो आई कैन नॉट टेल इज एक्सप्रेस इन दिस वे. ओके, आई एम टू हैप्पी टू टेल. शी इज़ सो रेस्टलेस, शी कैन नॉट स्लीप. अभी वो इतनी रेस्टलेस है कि उसे नींद ही नहीं आ रही. ओके, सो शी इज़ टू रेस्टलेस टू स्लीप. यहाँ पर हमने रीज़न दिया कि वाई शी इज़ नॉट एबल टू स्लीप, बिकॉज शी इज़ टू रेस्टलेस. Now in this exercise you have to use to plus first form of the verb or bare infinitive. ठीक है, या तो आपको to के साथ first form of the verb लगाना है या आपको bare infinitive यूज़ करना है. ओके, मीन्स विदाउट द प्रीपोजिशन to. हमने जो infinitive में टाइप्स पढ़े वो टाइप में से आपको यहाँ पर FB फिल करनी है. To forgive is divine. Okay, the first question is to forgive is divine. यानी हमें इस एक्सरसाइज में से हमें इन्फिनेटिव फाइंड करने हैं और हमें अंडरलाइन पे लिखने हैं. ठीक है, टू फॉरगिव इज डिवाइन. यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू फॉरगिव. सो हियर टू फॉरगिव इज द infinitive. Okay,
it is infinitive. The second sentence is I noticed him cheer. Here, here the bare infinitive is there and we have to recognize कि bare infinitive कौन सा है. ठीक है. Here the bare infinitive is cheer. Okay. The third is wood is used to make tables. यहाँ पर हमें पता है कि टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है टू मेक. ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है. ओके, इन दिस एक्सरसाइज you have to complete the following sentence with टू इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज. या तो आपको इन्फिनेटिव फ्रेज लगाना है, यानी विद द हेल्प ऑफ बेयर इन्फिनेटिव यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, या तो आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है. सो माई फादर टॉट मी. माई फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल. सो हियर वी विल राइट टू राइड a bicycle. Okay, it is foolish to talk rubbish. Okay, to talk illogical. We should always, now we should always, here always के बाद हम to नहीं add कर सकते, इसीलिए we should always follow the rules, रिस्पेक्ट द एल्डर्स. तो आपको जो सूटेबल हो वैसे आपको टू इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट. ओके, यू हैव टू सॉल्व द लेट्स डू एक्सरसाइज A and B. Okay children, bye. Take care.